بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ میچ کھیلنے والا کپتان ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، چوروں کا ٹولہ کچھ بھی کر لے میں تیار ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں مظلوم کو انصاف اور مجرم کو سزا دی جانے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اپوزیشن عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اس وقت احتجاجی سیاست ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ نفاق کے بیج بونے والوں کے لیے اپنے دانتوں سے گرہیں کھولنا پڑیں گی۔ ٹیکسلا کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار کار بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے شکار گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، گاڑی میں موجود 4 افراد جھلس کر دم توڑ گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے نعشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ہارون آباد میں تیز رفتار مسافر بس کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد عرفان کے نام سے کر لی گئی، زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد کے علاقے کوٹ سنجر خان میں بااثر ملزمان کا مبینہ طور پر زمیندار پر تشدد، ملزمان کے تشدد سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ چنیوٹ کے علاقے 4 یار کالونی میں اوباش کی 10 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی، ملزم کی عدم گرفتاری پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ ڈی پی او آفس کے سامنے احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دینا میں تھانہ پولیس کی کامیاب کارروائی، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر میوزیکل پروگرام کے دوران پولیس کا چھاپا، پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اور کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے، ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 1.29% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 30,281 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سانگڑ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے حکم پر عمل درآمد، برآمد کی گئی منشیات کو تلف کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں منظور احمد کی رپورٹ۔ سانگڑ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے حکم پر کیسوں کے پراپرٹی میں کافی عرصے موجودہ منشیات کو سانگڑ تھانے پر عین میدان میں سول جج اینڈ جوڈیشنل مجسٹریٹ کورٹ غلام مصطفیٰ جمالی، سول جج اینڈ جوڈیشنل مجسٹریٹ دوئم سید رمیز راجہ کے موجودگی میں ایس ایچ او سانگڑ مقصود رضا منگنہار، ایس ایچ او پیرومل نے منشیات چرس کو آگ لگا کر تلف کر دیا۔ منظور احمد ڈائری، ڈسٹرکٹ رپورٹر کے این سانگڑ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں حقوق نسواں کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کالج، ٹیچنگ اسپتال اور دیگر سرکاری اداروں میں منعقدہ تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین نے سیاسی، سماجی اور کھیل کے میدان میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔
سوات میں ڈی پی او لوئر چترال سونیا شمروز کی ہدایت پر عمل درآمد ضلع بھر کے 11 پولیس اسٹیشنز کی جدید سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا. دیکھتے ہیں محمد ابرار حسین کی رپورٹ. رینج شان اصغر کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت پر ڈی پی او لو چترال سونیا شمروز خان نے لو چترال میں پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم متعارف کروائے ہے، جس کے ذریعے ہزارہ کے تمام پولیس اہلکاروں کے ریکارڈ کمپیوٹر سسٹم میں اپ ڈیٹ کیا گیا. اس طرح سال 2022 کے تمام ایف آئی آر اور کیس فائل سسٹم میں اندراج کی گئی. ضلع ہزار میں اب تمام ایف آئی آر اور تفتیش امور کمپیوٹر ہوں گے. 11 پولیس اسٹیشن کو جدید سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا، جس سے عوام کو بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی. اس سسٹم سے یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ عوام کو شکایات تھی پولیس کے حوالے سے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی یا ڈیلے ہو رہا ہے ان کے کسی کام میں، تو ابھی اب اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے جتنی بھی پروگرس ہے، چاہے وہ تفتیش کے حوالے سے ہے یا اوور آل پولیس کی کام کے حوالے سے ہے، تو وہ ہم اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے مانیٹر کر سکتے ہیں. اور عوام کو شکایت کو کمپیوٹرائز نظام کے تحت درج کیا جائے گا. چترال کی تاریخ میں پہلی بار کو شکایت کو کمپیوٹرائز نظام کے تحت درج کیا جائے گا. پہلی بار ٹھری میروا میں محمد یوسف آوان اور ڈاکٹر محمد حنیف آوان کی یاد میں 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ٹھری میروا ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ادویات فراہم کی. اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا. اس موقع پر آوان برادری کے محمد یوسف آوان نے نثار احمد کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. کراچی میں ڈپٹی کمشنر ملیر گھنور علی لغاری کی ہدایت پر ایکشن قبضہ مافیا سے 100 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی. دیکھتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر ملیر گھنور علی لغاری کی ہدایت پر سب ڈویژن شاہ مرید اور دے الافائی میں اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کی قیادت میں ایس ایچ او انکروچمنٹ پولیس، ملیر پولیس، ضلع کونسل کراچی، بلدیہ ملیر کی ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دے شاہ مرید اور دے فائی میں 100 ایکڑ سرکاری زمین سے قبضہ واگزار کرایا گیا. سرکاری زمین پر جعلی رہائشی اسکیم کے نام پر پلاٹس فروخت کرنے والی بکنگ آفس کو مسمار کر کے زمین بوز کیا گیا. خالی کروائی گئی سرکاری زمین کی مالیت اربوں روپے کی ہے، جس پر قبضہ گیر قابض تھے اور لوگوں کو پلاٹنگ کے ذریعے فروخت کر رہے تھے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ملیر گھنور علی لغاری نے صحافیوں کو بتایا کہ ضلع ملیر میں سپریم کورٹ کے احکامات پر زمینوں سے قبضے ختم کروانے کے لیے مشترکہ کارروائی کی جا رہی ہے. انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص نے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ مین میرپور ماتھلو کے نواحی شہر جروار میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالیوں کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا. شہری پریشان ہیں. انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. بزدار محلہ، چنا محلہ اور دیگر مقامات پر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالیوں کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث طلباء اور نمازیوں کو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی سے نوٹس لے کر صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی میں انٹیلیجنس معلومات پر کسٹم حکام کی کارروائی. نان کسٹم پیڈ اشیاء کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. دیکھیے عمران علی کی رپورٹ. پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے کسٹم حکام کو اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون فراہم کرنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ضلع جیکب آباد اور کشمور میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر عبدالجبار شہید ڈیرہ مور اور گڈو چیک پوسٹ پر کارروائی کی گئی، جس کے دوران نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. نان کسٹم پیڈ اشیاء کی تفصیل درج ذیل اور مالیت تقریباً 7 کروڑ 71 لاکھ روپے ہے. ضبط شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا. سید عمران علی. ناظرین، پتوکی میں زمین کے تنازع پر اقبال نامی ایڈوکیٹ کا قتل. ملتان روڈ پر مخالفین نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اقبال نامی شہری کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مقتول کے لواحقین کا کہنا ہے کہ اقبال کے ہم زلف اور دیگر رشتہ داروں سے زمین تنازع چل رہا تھا اور اسے دھمکیاں مل رہی تھیں. اسی حوالے سے تھانہ سٹی پتوکی میں 2 ماہ قبل تحریر درخواست دے کر FIR بھی درج کروائی گئی تھی اور زمین کا کیس عدالت میں چل رہا تھا. ورثاء نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کی جلد گرفتاری عمل میں لا کر انصاف فراہم کیا جائے. دوسری طرف وکلا برادری کی جانب سے دن دہاڑے وکیل کی بہیمانہ قتل پر قاتلوں کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا گیا.
कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई मुनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। रबिया शेख की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स की मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद मंशियात के ऑपरेशन में मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान शुमाली बहराए अरब में बेनाम कश्ती और 8 गैर मुल्की स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया, जिससे तकरीबन 658 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। मंशियात की बैनुल अक़वामी मंडी में मालियत का तखमीना 635 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। पकड़ी गई मंशियात को स्मगलरों के साथ मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टम्स पर यूनिटों के हवाले कर दिया गया है, जिसमें गिरफ्तार फर्द या गिरोह में से किसी के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की तहकीकात और कानूनी कार्रवाइयों की तकमील शामिल है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स का कामयाब ऑपरेशन, जिसके नतीजे में मंशियात की जब्तगी हुई है, इस बात का सबूत है कि हम किसी भी गैर कानूनी काम या मकासद के लिए पाकिस्तानी पानियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए चौकस और पुरज़म है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी। रावलपिंडी में जश्न विलादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। महफिल का एहतमाम आसिफ हुसैन शाह और इनके रुफाका की जानिब से किया गया। तकरीब में वासिफ शाह और अली रजा कमर फरीद, हाकिम अली हाकिम, फरहान अली वारिस, मौलाना यासिन कादरी, मौलाना मुंतजिर मेहदी, कवाल शहबाज फयाज ने सीरत हुसैन पर रोशनी डाली और इनकी कुर्बानियों को खूबसूरत पेराए में पेश किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी ने दीन इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया और इन्होंने अपनी जान नाना के मुबारक दीन पर कुर्बान कर दी। महफिल के इख्तिताम पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। नाजरीन, सऊदी अरब में मारूफ बिजनेसमैन नसीम महमूद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका के नायब सदर राना सादत एजाज के एजाज में इशाइये की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना सादत का कहना था कि सऊदी अरब में आप सबसे मिलकर यूं लगा जैसे अमरीका और पाकिस्तान में हूं। यहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वही जज्बा और जुनून है जो वहाँ है। इमरान खान की तरफ से कौमी सेहत कार्ड, रोशन डिजिटल अकाउंट, मेरा घर स्कीम समेत दीगर मंसूबों पर खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी स्कीमों से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहिए। मेजबान इंजीनियर नसीम महमूद और इंजीनियर शफीक मेतेला ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के खास बात है कि परदेश में भी देश जैसा रंग जमा लेते हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। देखते हैं अनवर मगसी की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह के ज़ेर सदर जानवरों में फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन के हवाले से अहम इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक समेत दिगर हकाम शरीक। इजलास में लंपी स्किन के बीमारी के हवाले से आगाही। सूबे में अब तक 20,250 जानवरों में ये बीमारी पाई गई है। सूबे में अब तक 54 जानवरों की लंपी स्किन के बायस अमवात हुई है। जानवरों में अमवात का तनासुब 0.1% रिकॉर्ड किया गया है। लंपी स्किन से सूबे भर में 4,751 जानवर सेहताब हुए हैं। सिंध हुकूमत का मुतासर इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन करने का फैसला। लंपी स्किन से मुतासर इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन की जाए। जानवरों की वैक्सीनेशन के साथ जल्द की दिगर दवाएं भी जानवरों को लगाई जाए। मुतासर जानवरों के इलाज के सिलसिले में उदयात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुतासर इलाकों से जानवरों की नकल व हरकत को भी रोका जाए। कैटल फार्म्स और उसके एतराफ़ में मच्छर मार स्प्रे के लिए ज़िला इंतज़ामिया की मदद ली जाए। मवेशी मालकान को बीमारी को इसके बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक़ आगाही दी जाए।
इजलास को बताया गया कि इस बीमारी के जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने का इम्कानात नहीं। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि शुजाबाद में भी खवातीन के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इंतजामिया और खवातीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जिस तरह मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और SPO के ताउन से शुजाबाद में भी इस दिन का मनाया गया, इनेकाद किया गया कुछ तकरीबात का, जिसमें हमने एक साल की प्रोग्रेस देखी। जो खवातीन के हकूक़ के रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स थे उसको हमने रिव्यू किया और आइंदा साल में हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं या हमारी क्या टाइमलाइंस होंगी उन प्रोजेक्ट्स को करने की, उसको डिस्कस किया। और एक छोटी सी तकरीब का मुनक्किद की सोशल वेलफेयर ऑफिस से, जिसमें हमने खवातीन की सक्सेस स्टोरीज सुनी, उनके कुछ मसाइल सुने और उनको यकीन दहानी करवाई कि गवर्नमेंट लेवल पे और सोशल सेक्टर लेवल पे उनको हर तरह की उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके मसाइल सुने जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मार्च वुमेन का आलमी दिन है और पूरे पाकिस्तान में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हमारे माशरे में शऊर को उजागर किया जाए कि माशरे के अंदर औरतों के बारे में एक्सेप्टेंस बढ़े और हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के हवाले से आगाही और शऊर दिया जाए। और यही सेलिब्रेशन पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। और तमाम बरेया सिटी में सानेह जामे मस्जिद पिशावर के खिलाफ नादरा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मोहम्मद कासिम जुनेजो, सैयद इख्तियार हुसैन की सरबराही में निकाली गई। इस मौके पर उनका कहना था कि सानेह पिशावर की दहशत गर्दों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मुजाहिरीन ने दहशत गर्दी में मुलव्विस सहूलतकारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बहावलपुर में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि खवातीन माशरे का अहम हिस्सा है, इन्हें बावकार बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने काफी इकदाम किए हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान की तमाम खवातीन को वुमेन डे बहुत मुबारक हो। इस साल का जो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका जो बेसिक थीम है वो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से है कि तमाम पाकिस्तान में तमाम मर्द औरतें बराबर हैं, उनको हर किस्म के जो राइट्स हैं इक्वालिटी के बेस पे इंशाल्लाह मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। और हकूक़ के हवाले से हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों के हकूक़ के मामले में अल्लाह से डरो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें पता चलता है कि ख़वातीन के क्या राइट्स हैं। जब आप वसल्लम जब सफ़र पे जाते थे तो हज़रत फातिमा ज़हरा से मिल के जाते थे, जब वापस आते थे फातिमा ज़हरा से मिलते थे। जब फातिमा ज़हरा आपके पास मिलने आते तो आप खड़े हो जाते थे, चादर बिछा देते थे। तहरीक इंसाफ की जो अचीवमेंट है वो ख़वातीन के हवाले से बताना चाहूँगी। वो पहले जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलता था, कोर्ट से मिलता था, उसे 3-4 महीने लग जाते थे। वरासत के कानून में तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये है कि अब सर्टिफिकेट जो है वो नादरा से आप विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर वो ले सकते हैं। जी, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आलमी सतह पे मनाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन ख़वातीन को फिर भी इग्नोर किया जाता है। किसी भी शोबा है ज़िंदगी में देख लें, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो फ़राइज़ तो पूरे करने के लिए आप लोग कहते हैं, लेकिन हकूक़ जो है ना उसको नहीं दिए जाते। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसके लिए हुकूमत ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए तरमीम बनाई है और इस पर अमल दरामद काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत ही कम किया जा रहा है। और हैदराबाद में इंतजामी के नाअहली के बायस मेन शाहरा खस्ता हाल है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में। हैदराबाद में बल्दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुताल्लिका इदारों की अदम दिलचस्पी के बायस अब ये शहर खंडर रात का मंजर पेश करने लगा। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में गंदगी गजालत के जहाँ ढेर हैं दिखाई दे रहे हैं, वहीं के शहर के जो मुख्तलिफ शाहराह हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं।
जिसकी वजह से हैदराबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से ऑफिसर भी गुजरते हैं, गरीब भी गुजरते हैं, सब, लेकिन कहने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आए, आप लोगों की मेहरबानी, सबसे हो सके तो मेहरबानी करके इस खबर को ऊपर पहुँचाओ ताकि ये मसला हल हो। यहाँ का भी गटरों की भी ये हालत है कि पानी निकलते रहते हैं, बढ़ जा। लतीफाबाद 12 नंबर राजा बाजार से जो मेन शाहराह एयरपोर्ट जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ के इलाका मकीनों के साथ साथ जो यहाँ से चलने वाली ट्रैफिक है, इसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए जा रहे। शहरियों ने अरब अख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इसमें शहर का जो तामीराती काम है वो शुरू कराया जाए। बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के ब्लाइंड टीमों के दरमियान माबैन T20 मैचेस की सीरीज जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, मैच का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की जो ब्लाइंड टीमें हैं उनके माबैन एक सीरीज़ हो रही है, जिसमें आज भी उनका मैच हो रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जमे हैं और कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे निसार अली खान हैं, जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी निसार साहब, ये बताइएगा, जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट बहाल हो रही है इतने अरसा बाद और जो बैनुल अक़वामी टीमें यहाँ पर आ रही हैं, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? जी, पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली है ये बड़ा खुशाइंद है। तो इस हवाले से साउथ अफ्रीका की टीम जो हमारे इधर आई है खेलने के लिए, ये भी उनका बड़ा अच्छा इक़दाम है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आई हुई है, ये बड़ा ऑनर है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो यकीनन ये पाकिस्तान में खेलों की बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है। क्या पैगाम देंगे आप बैनुल अक़वामी टीमों को? बैनुल अक़वामी टीमों के लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान बड़ा सिक्योर मुल्क है और यहाँ पे हर बंदा सेफ है, तो वो आए यहाँ आके खेलें और एंजॉय करें। जैसे साउथ अफ्रीका की टीम आपके सामने खेल रही है और एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी यकीनन एंजॉय कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो टीम्स भी यहाँ आएंगी वो यकीनन एंजॉय करेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना, निसार अली खान जो है वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन, उनका ये कहना है कि मेरा पैगाम है बैनुल अक़वामी टीमों को कि वो यहाँ पर आए। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ पर खेलों को भी फरोग दिया जाता है, आप भी आए और यहाँ पर इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया मुरीद हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। बन्नू के दूर अफराह इलाके जानी खिल में एहसास प्रोग्राम सेंटर का कायाम अहले इलाका की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद खान से। जी फ़िदा, आगाह कीजिएगा। सिरकोट के नवाई इलाका गले में सकाफती बैल दौड़ मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें नामी गिरामी बैलों ने हिस्सा लिया। इस सकाफती मेले में कसीर तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की। हर साल इलाका गंगर में सकाफती मेला बैल दौड़ खेला जाता है, जिसमें दूर दराज से बैल लाए जाते हैं। इस सकाफती मेले के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली सदर साहबजादा अहमद शाह थे। उन्होंने कहा, जश्न गले सिरकोट का कामयाब इनेकाद किया और दूर दराज इलाके को हजारों की तादाद में अच्छा गले दे इस मैदान में मौजूद ने इंतजामिया को जल्दी अता गिराइए नाल मुबारकबाद पेश करना। और मेरे बड़े बुजुर्गों दोस्तों, चूंकि बारिश आ गई है और इनामात में तकसीम करने में मैं सिर्फ एक गल कर सा और हर जगह गल की गल कर सा। मलकवाल के इलाके में दी रीडर स्कूल गुजरा का इफ्तिताह कर दिया गया। स्कूल का इफ्तिताह साहबजादा पीर हाफिज मोहम्मद नईमुद्दीन शाह, पीर सैयद इरफान रसूल शाह और पीर सैयद बिशारत हुसैन शाह ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मलकवाल के नवाही इलाके गोजरा में दी रीडर्स स्कूल गोजरा का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें इलाका भर से नामवर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। स्कूल इंतजामिया ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने से बेहतरीन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ की गई और शुरका के एजाज में जोहराना भी दिया गया।
शेखुपुरा में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बायस गरीब आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बेग से। जी महमूद बेग, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानब से आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर रोड फ्रूट मंडी में, जहां पर जो फ्रूट मंडी के में जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी सब्जियों की तो यहाँ पर मटर, बैंगन से लेकर जितनी भी अशिया हैं उससे 10 से 20 रुपए तक जो है वो ग्राम फरोशी की जा रही है। हुकूमत की जानब से यहाँ पर जो सरकारी रेट लिस्टें दी गई हैं वो भी यहाँ से गायब हैं। मैं आपको अवामी हलकों की राय बताता हूँ कि अवाम का ये कहना है कि हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन अवाम को बुनियादी जो अभी तक खाने पीने की अशिया में रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। इंतज़ामिया जो है वो अब आपको बताएं कि लाहौर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान के हुक्म और एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन सरफराज विरिक की हिदायत पर एक्शन। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादबाग मोहम्मद अख्तर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहजाद पठान को 3 साथियों नदीम, यासिर और कामरान समेत गिरफ्तार कर लिया। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन, 22 तोला जेवरात और 14 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी सरफराज विरिक ने अपने दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादरा ने मां बेटी के डबल मर्डर की संगीन वारदात में मुलव्विस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मुबारक अली उर्फ माखा ने चंद रोज कबल अपनी जो है मां बेटी को छुरियों के वार करके जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया था। जबकि एसपी मुबारक के जो है हवाले से बताते चले कि मकतूला सना का सायाजाद भाई है और मकतूला का मुलजिम के भाई से रिश्ते के तनाजा पर जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। फिर बात की जाए अगर शादबाग पुलिस की, तो शादबाग पुलिस ने तकरीबन 8 से जायद जो है वो डकैती की वारदात करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से जो है वो लाखों रुपए नकदी, जायद मुल्की करेंसी, 2 रिक्शे, 2 मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद करके उनको जो है वो जेल भिजवाया है। जबकि इन्वेस्टिगेशन शादबाग ने जो है वो बीमा गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में नदीम उर्फ बीमा, बलाल और हमजा खालिद शामिल हैं। मुलजमान से 10 लाख नकदी, 22 तोले सलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया और नाजायज असला बरामद करके जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो उनको भी जेल भिजवाया गया। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग करप्ट और ड्यूटी में गफलत बरतने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुतहरिक हो गए। मोहम्मद अदरीस असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल की ड्यूटी बतौर इंचार्ज मुलाकात शेड्यूल थी। ड्यूटी में गफलत बरतने पर 1 साल की सालाना तरक्की रोक ली गई। आपको बताएं कि वाहद बख्श हेड वार्ड्स के जरिया सीसीटीवी कैमराज कैदी से दौरान तलाशी रिश्वत लेते देखा गया और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सद्दीक अयूब वार्ड की ड्यूटी बतौर ऑपरेटर कंट्रोल रूम थी। रिश्वत लेने वाले मुलजिम की मुशाहिद से गफलत बरतने पर 1 साल की सालाना तरक्की रोक ली गई। सुमेरा यूसुफ लेडी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल को ड्यूटी में गफलत बरतने पर इल्जामात पर जाती नुशवाई की गई, जबकि जवाज कबूल करते हुए इल्जामात से बरी कर दिया गया। फरूख अमीन वार्ड को 32 दिन बगैर इतला गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आईजी जेल खाना जात की ताखीर से अपील करने पर काबिल समात ना हो सकी। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने मुलाजमीन को अपने फराइज मनसबी दयानदारी से अंजाम देने के लिए हिदायत की है।
वैसाखी मेला 2022 के हवाले से कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद ने की। तफसीलात जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। सलमान शाह, मीटिंग का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल अहमद, वैसाखी मेला 2022 के हवाले से कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया और इस मीटिंग की सदारत चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद ने की। मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद सलीम, डिप्टी सेक्रेटरी शराइन मोहम्मद इमरान गोंदल, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह, CEO करतारपुर मोहम्मद लतीफ और बोर्ड तर्जुमान आमिर हुसैन हाशमी समेत दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग में वफाकी सूबाई इदारों लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, नारोवाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला के ज़िले हुकाम भी शरीक हुए। मीटिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान भी शरीक थे और वैसाखी मेला 2022 के निकात के हवाले से तमाम मामला जेर बहस आए। भारतीय सिख यात्रियों को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से तामो कयाम, मेडिकल और सिक्योरिटी की तमाम सहूलियां फराहम की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तानी गुलकारा अमीरा मीर का नया वीडियो सॉन्ग इश्क है बेपनाह रिलीज हो गया। मदाहों की जानिब से नए सॉन्ग को खूब सराहा गया। देखते हैं उमर जट की रिपोर्ट। मॉडल कंपेयर गुलकारा अमीरा मीर ने अपना नया वीडियो सॉन्ग इश्क बेपनाह वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया। गाने की कंपोजिशन म्यूजिक बिलाल वाजिद उमर हसन ने दिया, जबकि इसका मिक्स मास्टर म्यूजिक डायरेक्टर अली मुस्तफा ने तरतीब दिया। वीडियो की डायरेक्शन बिलाज खान ने दी। गुलकारा अमीरा मीर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये मेरी पहली म्यूजिक एल्बम है जिसमें मैंने अपना तीसरा गाना इश्क बेपनाह को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज कर दिया है। पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद दूसरी वीडियो में मलका तरन्नुम नूरजहान को ट्रिब्यूट पेश किया था। इस वीडियो को म्यूजिक के दिलदेद अफराद की जानिब से बेहद पजीराई हासिल हो रही है। पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। कैमरा टीम के साथ उमर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी अशरफ गार्डन ने घर बनाने के सब्ज बाग दिखाकर प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए आवाम से करोड़ों रुपए बटोर लिए। तफसीलात जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट से। जी साकिब भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल अहमद, लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी अशरफ गार्डन वाकिया बन्नाबाद के बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये सोसाइटी LDA से मंजूरशुदा नहीं, जबकि सोसाइटी की तरफ से अवाम को लालच देकर प्लॉटों की सेल जारी है। कोहिनूर की टीम जब मौका पर पहुंची तो वहां पर मकानों और दुकानों की तमीर जारी थी। इस सिलसिले में जब हमने सोसाइटी इंतजामिया और सोसाइटी के मालिक से इस बारे में राब्ता किया तो उन्होंने अपना मौकफ देने से इनकार करते हुए धमकियों पर उतर आए। अहमद, यहाँ आपको मैं बताता चलूं कि इस सोसाइटी में बिजली के कनेक्शन भी गैर कानूनी दिए गए हैं, जिससे हुकूमत को लाखों का नुकसान हो रहा है। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि ये माफिया इतना ताकतवर हो चुका है जो अशरफ गार्डन जैसी स्कीमों के मालकान सरकारी इदारों को खरीद कर अपनी मनमानी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि अल रहमान डेवलपर्स के CEO और पंजाब डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद मुश्ताक पर कातिलाना हमला। 4 नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ड्राइवर अलादिता जख्मी हो गया, जबकि मियां मुश्ताक मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मियां मोहम्मद मुश्ताक अल रहमान गार्डन फेज 2 हेड ऑफिस से अपने ड्राइवर अलादिता के हमरा जाने के लिए निकले थे तो 4 नामालूम अफराद ने उन पर कातिलाना हमला करते हुए शदीद फायरिंग की। पंजाब डेवलपर्स एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और अल रहमान डेवलपर्स के तमाम मेंबरान और अहलियाने इलाका ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत पंजाब से अपील की है कि मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की जाए और कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। नाजरीन, टेक्सला से रावलपिंडी जाने वाली कार को मल्टी गार्डन सोसाइटी के करीब हादसा।
तेज रफ्तारी के बायस कार गहरी खाई में जा गिरी और गाड़ी में आग भड़क उड़ी। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाम बहक हो गए। यानी शाहिदीन ने रेस्क्यू 1112 को इतला दी, मगर फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गाड़ी में सवार तमाम अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक हादसे में झुलस जाने वाले अफराद की पहचान मुमकिन नहीं हो सकी। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हरुणाबाद में नहर पुल 4R के करीब मेन शाहरा पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से कर ली गई। रेस्क्यू टीम ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादिकाबाद के इलाके कोट संजर खान में बाअसर मुल्जिमान का मुबैना तौर पर जमींदार पर तशद्दुद। मुल्जिमान के तशद्दुद से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि बाअसर मुल्जिमान ने जमींदार के गन्ने की फसल पर कब्जा करने की कोशिश की। मुजाहमत पर मुल्जिमान ने जमींदार पर मुबैना हमला कर दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि मुल्जिमान ने हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। हमारे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। एक शख्स का बाजू टूट गया है जबकि ट्रॉलर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दीना में थाना पुलिस की कामयाब कार्रवाई। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान पुलिस का छापा। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि दीना में थाना पुलिस की कामयाब कार्रवाई। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान पुलिस का छापा। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चन्योट के इलाके चारियार कॉलोनी में औबाश की 10 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलजिम ने 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, मगर अब तक पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब तर्जुमान पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज है, मगर मुलजिम अबूरी जमानत पर हैं। फतेहपुर में बाबर अली नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मामला जख्मी हो गया। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। देखते हैं अनवर शाह की रिपोर्ट। थाना फतेहपुर की हदूद 111 TDA में मुबैना तौर पर पुराने मुकदमे की रंजिश में फायरिंग से जख्मी होने वाले बाबर अली के लवाहिकीन मुल्जिमान की गिरफ्तारी ना होने पर सरापा एहतजाज हैं। लवाहिकीन का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। बाबर अली और इसके वालिद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है, नाम बाबर अली है, मुझे मकबूल हुसैन ने, नदीम अख्तर ने और अदील ने, ये तीनों थे, और मकबूल हुसैन ने मुझे फैर मारे हैं 2। एक मेरे सर के ऊपर से गुजर गया और दूसरा मेरे टांग में लगा। तलबा है कि उन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। वो अभी भी हमें धमकियां देते हैं। जल्दी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। सानू धमकियां दिंदा भी मैं होरां नूं भी फैर मारांगा, फिर गिरफ्तारी दांगा। मेहरबानी करके जिन्नी जल्दी हो सकता है इसकी गिरफ्तारी की जाए। ये बहुत सानू जलील कर रहा है। SHO फतेहपुर का कहना है कि मुल्जिमान अबूरी जमानत पर हैं, लेकिन मुल्जिमान कानून से बालातर नहीं। सजावल में एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम ना मिलने का मामला। रकम की अदम अदायगी पर खवातीन ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिन से आ रहे हैं, मगर हमें रकम की अदायगी नहीं की जा रही। बैंक इंतजामिया एजेंट्स को रकम दे रही है और एजेंट्स 2000 रुपए की कटौती करने के बाद बकिया रकम हमें देते हैं। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि शिकारपुर के नवाही इलाके सुल्तान कोट के करीब डकैती की वारदात। मुल्जिमान ने मुकामी घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया। शकरगढ़ में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन एक्शन। कम पेट्रोल डालने पर पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। मुकामी होटलों पर खानों के मयार को चेक किया। मुतअद्दिद होटल मालिकान को जुर्माने भी किए गए। आपको बताएं कि शकरगढ़ के गिरदो नवा में पेट्रोल पंप मालिकान और होटल माफिया की मनमानियों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक्शन लेते हुए मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान को हुकूमती रेट से ज्यादा और मिकदार में कम पेट्रोल फरोख्त करने पर लाखों रुपए जुर्माने आयद किए और टीम के हमरा छापे के दौरान होटल पर रोटी का वजन भी चेक किया और खानों की क्वालिटी और रेट भी चेक किए, जिस पर दुकानदार और पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। बादअज़ां जगहों पर मुज़ाहमत भी सामने आई। कमालिया में अस्पताल इंतजामिया का हमला, खातून को दाखिल से इनकार। खातून ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी पर आवाम का अफसोस का इजहार किया गया। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टंडू जाम के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। देखते हैं जुनेद अली की रिपोर्ट। टंडू जाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का निजाम धर्म भरम हो गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। सफाई का अमला मंजर आम से गायब हो गया है। जराये के मुताबिक सफाई का ठेका 18 लाख रुपए का होने के बावजूद भी ठेकेदार को 14,31,000 रुपए का चेक दिया जाता है। जराये का ये भी कहना है कि इसमें भी एक करप्शन का बड़ा किरदार है। चेक को पास करने और दस्तखत करने के लिए 1,15,000 रुपए ठेकेदार को देने पड़ते हैं। मजीद जराये का ये भी कहना है कि 2.5 लाख रुपए बल्दिया के आला अफसरान को दिए जाते हैं, जिसके बाइस टंडू जाम शहर को सफाई के हवाले से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर शहरों का कहना है कि हमारे मोहल्ले के अंदर गंदे पानी से नालियां भर चुकी हैं और पानी बहकर रोडों पर आ चुका है। नाली से जो कचरा निकाला जाता है वो उधर ही रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है। जो भंगी हमारे पास आ रहे हैं वो आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें पैसे दो तो हम ये कचरा उठाएंगे। इंतजामिया से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस मसले पे गौर व फिक्र किया जाए और आकर इस सफाई सुथराई करवाई जाए। भाई हमारी ये नालियाँ वालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, मेहरबानी करके ये हमारी नालियाँ तो साफ करवाओ। दूसरा नाली वाले को हमने बोला तो उसने कहा कि वो हमारा ड्यूटी नहीं है, झाड़ू दूसरे का है। दूसरे वाले को बोलते हैं तो उसका है। और थोड़ा सा ज्यादा हम बेखलाकी भी नहीं करते, प्यार से उनको समझाते हैं। टंडू जाम शहर में जगह जगह गंदगी और तहफ़्फ़ुन के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं और ये जिले संजरपुर में दही मरकजी सेहत के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं जाम जमीर की रिपोर्ट। संजरपुर दही मरकज़ सेहत संजरपुर और इतराफ में नालों का गंदा पानी जमा होने से ताफून फैलने लगा। बारिश के दिनों में नालों में पानी भर जाने से दही मरकज़ सेहत और उसके इतराफ आने जाने वाले रास्ते पानी से भर जाते हैं, जो कई दिन खड़ा रहता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और अस्पताल आने वाले मरीजों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और डेंगू की अफजाइश की फैक्ट्री लग जाती है। बदबू और ताफून फैलने से डेंगू के खतरात मंडलाने लगते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों का कहना है कि खड़े पानी की वजह से हमारे स्कूल की वर्दियां भी खराब हो जाती हैं और कई दिन हम खेल कूद जैसी सेहतमंदाना सरगर्मियों से भी महरूम रहते हैं और पानी की बदबू की वजह से हम ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार रहते हैं। दही मरकज़ सेहत संजरपुर अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि DC रहीमियर खान और AC सादिकाबाद और आला हुकाम से अपील है कि वो दही मरकज़ सेहत और उसके इतराफ रास्तों में गंदा पानी जमा होने के मामले का कोई बेहतर हल करें ताकि हम पर फिजा और सेहतमंदाना माहौल में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। कैमरा टीम के टंडू आदम में थाना पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदर खान मरी घोट में छापा मारा और महकमे एक्साइज के कांस्टेबल बशीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर और MPA समीउल्लाह चौधरी का कहना है कि हुकूमत गरीब अफराद के फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। सकपा सूबाई वजीर व MPA समीउल्लाह चौधरी ने हुकूमत गरीब अफराद की फलाह बहबूद और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। असास का औरत कार्ड प्रोग्राम हुकूमत का शानदार इकदाम है
اس سے غریب خاندان مستفید ہوں گے۔ اور ڈپٹی کمشنر آفس بہاولپور کے کمیٹی روم میں احساس کفالت کارڈ کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رینیو شاہد عمران مارت، ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر وزارت دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع بہاولپور میں 1,10,504 افراد کو احساس کفالت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، جن میں سے تحصیل احمد پور شرقیہ میں 54,360 افراد کو، تحصیل بہاولپور سٹی اور تحصیل بہاولپور صدر میں 24,735 افراد، تحصیل حاصل پور میں 10,357 افراد، تحصیل خیرپور ٹانوی میں 8,554 افراد، جبکہ تحصیل یزدان میں 12,498 افراد کو احساس کفالت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ کیمرہ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل عبد الجبار گجر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر محمد ظفر بزدار، تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی، ممبران ضلعی امن کمیٹی، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام و مشائخ، ممبران انجمن تاجران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل عبد الجبار گجر نے کہا کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سول سوسائٹی کے ممبران اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ امن، بھائی چارہ، اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیں۔ اسلام رواداری، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے معاشرے کے تمام افراد کردار ادا کریں تاکہ ملک دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ ہری پور صوبائی وزیر آبپاشی ارشد ایوب خان کا وی سی گیلک کا دورہ، جنازگاہ کی تعمیر سمیت کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز ذکی منظور کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر آبپاشی ارشد ایوب خان نے کہا ہے کہ ولیج کونسل کیلک اور ملحقہ دیہاتوں کے عوام کے صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے کیلک میں بنیادی مرکز صحت کے لیے حکومت سے خصوصی منظوری حاصل کروں گا۔ نئے ٹیوب ویل کی تنصیب کے بعد پینے کے صاف پانی کی ہر گھر تک فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھاری فنڈ مختص کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ خان کے مطالبے پر بچوں کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول کی منظوری اور نئی عمارت کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے، جس سے کیلک کے نوائی علاقوں کی بچیوں کو دہلیز پر تعلیمی سہولیات میسر ہوں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حزب اللہ خان کی دعوت پر علاقے کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبل ازیں حزب اللہ خان نے اپنے خطاب میں بنیادی مرکز صحت، گلیوں کی پختگی، جنازہ گاہ کی چار دیواری اور بجلی اور گیس سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا، جنہیں موقع پر ہی منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر وی سی کیلک سے منتخب ہونے والے دیگر عوامی نمائندوں نے بھی خطاب کیا۔ صوبائی وزیر ارشد ایوب خان نے کیلک دورے کے دوران چھچ میرا میں بابو نزاکت کی دعوت پر تشریف لائے، جہاں پر حزب اللہ خان اور حسرت خان کے مطالبے پر انہوں نے قبرستان کے لیے اراضی، جنازہ گاہ کی تعمیر، کمیونٹی سینٹر کے قیام سمیت واٹر سپلائی سکیم، واٹر بورڈ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔